رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، آپ سب کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ ناظرین، گزشتہ برس رمضان کی کیا کیا رونقیں ہمارے آس پاس موجود تھیں، لیکن اس برس ہم سب مقدس ماہ رمضان میں گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم گزشتہ برس کے رمضان کی رونقیں آپ کے لیے اس امید میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ شدت سے گزشتہ برسوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمیں ایک بار پھر رمضان کی پہلے جیسی رونقیں بخش دے، کورونا کے قہر سے پوری دنیا محفوظ رہے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنی روزمرہ کی معمولات زندگی کو بحال کر سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی رمضان کی گزشتہ رونقیں بحال ہوں گی۔ آئیے آپ کو گزشتہ برس کی رمضان کی رونقوں میں لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہماری درخواست ہے کہ گھر میں رہ کر ہی نماز اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ تو پیش ہے گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، آج کا یہ ایپیسوڈ ہم ریاست کرناٹک کے دو تاریخی شہر بیدر اور گلبرگہ سے پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم بیدر کی شان، بیدر کی پہچان مدرسے محمود گاوان سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے محمود گاوان کا ایک خوبصورت منظر۔ بہمنی سلطنت میں تعمیر یہ عمارت انڈو اسلامک فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ 15ویں صدی میں ایران کے تاجر محمود گاوان نے اپنے صرف خاص سے اس عمارت کو، اس مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ اس دور کی جدید تعلیم کا بھی انتظام تھا، یعنی دینی اور عصری تعلیم کا خوبصورت امتزاج اس یونیورسٹی میں دیکھنے کو ملتا تھا اور دنیا بھر کے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے بیدر آیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کی شاندار تاریخ، اس دور میں تعلیم، تجارت، سیاست میں مسلمانوں کے کارناموں، مسلمانوں کی ترقی کا عکس پیش کرتا ہے۔ تو چلیے مزید جانتے ہیں شہر بیدر کے متعلق اور دیکھتے ہیں یہاں ماہ رمضان کے شب و روز کس طرح نظر آ رہے ہیں۔ 14ویں صدی میں دہلی کے سلطانوں نے سرزمین دکن پر قدم رکھا۔ پہلے علاؤالدین خلجی کی قیادت میں، پھر محمد بن تغلق کی قیادت میں جنوبی ہند میں مسلم حکومتیں قائم ہوئیں۔ ان میں بیدر کا علاقہ بھی شامل تھا، لیکن 14ویں صدی کے وسط میں دکن میں تعینات چند صوبے داروں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلبرگہ میں 1347 میں آزاد بہمنی سلطنت قائم ہوئی۔ گلبرگہ، بیدر اور دیگر شہروں میں بہمنی سلطانوں نے اپنے دور میں قلعے، مسجدیں، مقبرے اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ دکن کے اس پورے علاقے کو ترقی، زینت اور خوبصورتی بخشی۔ بیدر کا تاریخی قلعہ اور دیگر یادگاریں اس دور کی سنہری تاریخ کی یاد دلاتی ہیں۔ احمد شاہ اول کے دور میں 1424 میں بہمنی سلطنت کا صدر مقام گلبرگہ سے بیدر منتقل ہوا۔ بیدر کی تاریخ کا ایک بڑا نام محمود گاواں ہے، جو 1466 میں یہاں کے وزیر اعظم بنے۔ ایران کے جیلان شہر سے آئے محمود گاواں بیک وقت جید عالم دین، دور اندیش حکمراں اور نامور تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے مدرسہ قائم کیا، جو اس وقت دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بیدر بہمنی حکومت کا پایہ تخت تھا اور یہ تعلیمی میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آج سے تقریباً 650 سال پہلے خواجہ عماد الدین محمود گاوان ایران سے تشریف لائے۔ وہ ایک بہت ہی مشہور تاجر تھے، عالم دین تھے اور جن کو یہاں پر وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور وہ اپنے ذاتی صرفے سے، ذاتی پیسے سے ایک یہاں پر یونیورسٹی بنائے تھے، خواجہ عماد الدین محمود گاوان یونیورسٹی، جس میں 25 ممالک کے طلباء و طالبات پڑھنے آیا کرتے تھے، اور اس میں ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی تھی، میتھمیٹکس کی تعلیم دی جاتی تھی،
لینگویجز کی تعلیم دی جاتی تھی، ساتھ میں اسٹرانومی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس وقت بیدر میں خواجہ عماد الدین محمود گاوان یونیورسٹی میں اسٹرانومی کی سب سے ماڈرن لیبارٹری، دنیا کی مشہور لیبارٹری بیدر میں ہوا کرتی تھی۔ کاش کہ وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی، اس کا استعمال ہوتا تو یقین کیجئے انسان چاند پر 100 سال پہلے چلے جاتا، یہ موبائل فون 50 سال پہلے آتا، ہم لیڈر ہوتے، ہم گائیڈ کرنے والے ہوتے، ہم دینے والے ہوتے۔ اس زمانے میں بہترین عالم دین بہترین کمانڈر ہوتا تھا، بہترین حافظ بہترین طبیب ہوتا تھا، دینی اور عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج تھا۔ آج ہم دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو الگ کر کے شاید یقیناً نقصان میں آئے ہیں۔ ناظرین، بیدر شہر سے اب ہم پہنچ چکے ہیں گلبرگہ۔ گلبرگہ اور بیدر شہر کے درمیان تقریباً 110 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگہ کے تاریخی قلعے میں موجود جامعہ مسجد میں۔ یہ تاریخی جامع مسجد کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی ہی خوبصورت یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اور یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار کہی جا سکتی ہے۔ گلبرگہ اور بیدر میں بہمنی سلطانوں نے تقریباً 100 سال تک حکومت کی۔ اس دوران ان سلطانوں نے کئی ترقیاتی کام انجام دیے، کئی خوبصورت مسجدیں تعمیر کروائیں اور کئی مقبرے اس دور میں تعمیر ہوئے۔ گلبرگہ شہر اپنی عظیم الشان تاریخ پر آج بھی نازاں ہے۔ گلبرگہ کا موجودہ سرکاری نام کلبرگی ہے۔ یہاں موجود بہمنی سلطانوں کا قلعہ، تاریخی جامع مسجد، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور 7 گنبد یہاں کے اہم تاریخی مقامات ہیں۔ بہمنی سلطانوں کے کئی کارنامے اور ترقیاتی کاموں سے آج بھی یہ شہر استفادہ کر رہا ہے۔ گلبرگہ ایک بہت ہی قدیم شہر ہے۔ اس کے قیام کو یا اس کو آباد ہوئے 750 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور یہاں بہمنی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی ہے، اور اسی سے ہی آپ جانتے ہیں کہ بیدر برید شاہی، بیجاپور کے عادل شاہی اور گولکنڈہ کے آصف جاہی یہ سلطنتیں قائم ہوئیں۔ آپ ان تمام شہروں پہ نظر ڈالیے تو ان تمام بہمنی حکمرانوں کے جو خدمات رہی ہیں ان کا جو مشہور بہت ہی کنٹریبیوشن رہا ہے وہ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ بیدر میں چلیے ایک عالیشان قلعہ آپ کو ملے گا، گلبرگہ میں تو قلعہ بہت ہی شاندار ہے، اور اس قلعے میں دنیا کی سب سے اچھی مسجد یہاں ہمارے پر موجود ہے۔ بیجاپور چلیے، بیجاپور میں بھی قلعہ آپ کو ملے گا، وہاں پر بھی جو ہے ابراہیم روضہ اور جیسی مسجدیں، شاندار مسجد ہم کو وہاں ملتی ہے۔ حیدرآباد میں چلیے، گولکنڈہ ہے، اور وہاں پر کئی مسجدیں وغیرہ ہم کو ملتی ہیں۔ بہمنی بادشاہوں نے اپنی رعایا کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب کہلاتی ہیں۔ کئی جامعات بھی تھے اس وقت، بہت دور دور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ بیدر اور گلبرگہ بھی آتے تھے، اور ان کے شاندار کارنامے جب تک یہ علاقے میں ترقی رہے گی ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ قومی یکجہتی کا ایک اعلیٰ نمونہ جو ہے شہر کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گنگو جو ہے ان کے جو وزیر تھے، ان کے خاص جو ہے آپ کے رہبر و رہنما تھے، اور وہ ان کے نام کا جز بن گیا۔ لہٰذا یہاں نہ صرف آپ کے قومی یکجہتی کے ایک شاندار جو ہے آپ کے سماج کو تشکیل دیا گیا، بلکہ اردو زبان و ادب کی اولین تخلیق بھی اسی شہر میں لکھی گئی، جس کے خالق حضرت خواجہ بندہ نواز ہیں۔ علاوہ ازیں انسان کو خوبصورت اور صحیح اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے قاعدے اور اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گلبرگہ شہر اس بات کے لیے بھی معروف اور مشہور ہے کہ دنیا کی ایک بہترین جو ہے آپ کے آئین، دستور اور قانون کو یہیں گلبرگہ میں لکھا گیا۔ اسی طرح قرب و جوار کے اضلاع بیدر میں سب سے پہلا ادبی کارنامہ وہاں لکھا گیا، مثنوی قدم رو پدم رو۔ اس طرح گلبرگہ شہر اردو ادب اور زبان کا جو ہے گہوارہ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بہمنی سلطان تاج الدین فیروز شاہ کی دعوت پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے جنوبی ہند کا رخ کیا اور گلبرگہ میں سکونت اختیار کی۔ ولی کامل
साहिब तसानीफ बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी का मरकज बनी हुई है। माह रमज़ान के दौरान यहाँ का माहौल और भी पुरनूर दिखाई देता है। दरगाह के अहाते में 3 मसाजिद आबाद हैं। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के इहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। तो बताइए, यहाँ आप आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? हमें गंगावती से आए हैं, गंगावती से आए हैं, ज़ियारत कर ले जाने के लिए आए थे हम लोग यहाँ। आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। बहुत सारी पब्लिक आ रही है, तो देख के भी खुशी होती है कि इतना हमारे कर्नाटक में इतना अच्छा यहाँ पे दरगाह का ये है बोल के। अच्छा, आप रोज़े से भी हैं? हाँ, मैं रोज़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है आने में, दिल बहुत खुश होता है इधर आने। तो रमज़ान में कैसे ज़िंदगी रहती है? जैसे आम धूप तो इधर है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से कुछ हमको ऐसा फील नहीं होता कि धूप ऐसा ही वैसे। मेरा घर इधर ही है, तो मैं हर ज़ोहर और इशा में यहीं आता हूँ नमाज़ के लिए। और कॉलेज और जल्दी भी है यहाँ पर जमात 1:20 को, तो रोज़ इधर ही होती है मेरी ज़ोहर और फजर और इशा भी। यहाँ पे सभी मज़ाहब के लोग आते हैं दरगाह शरीफ को, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पे रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा का माहौल बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। ज़रा धूप की वजह से ज़रा बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा, अगर बारिश आ गया बोलो तो बहुत अच्छा है बात। शहर बिदर और गुलबर्गा में इन दिनों शिद्दत की गर्मी है। यहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। बावजूद इसके यहाँ के रोज़ादार खुशू व खुजू तस्को एहतशाम के साथ रोज़े रख रहे हैं। दिन और रात इबादतों में गुजार रहे हैं और इस तरह अल्लाह के अहकामात को बजा ला रहे हैं। माह मुकद्दस का हर लम्हा कीमती होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीदर की ईदगाह की मस्जिद में। बताइए, आप सब लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। 38-40 तक डिग्री है, एक बात भी अल्लाह का शुक्र है। सहर भी अच्छी हो रही है और रोज़े भी अच्छे हो रहे हैं, दिन भी अच्छा गुजर रहा है। सबसे बड़ा एहसान है मालिक का। उठते हैं 3 बजे उठते हैं, सैर करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं फजर की। जो लोग दुकानों में, कपड़े की दुकानों में या टेलर दुकानों में कहीं मतलब दुकान के अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी है, क्योंकि उन्होंने अंदर दुकान के अंदर रहते। और जो लोग रोड पर, जैसा कि कोई गाड़ियाँ चलाए या कोई होटल वगैरह में या कोई ठेला बंडी लोग, उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। बताइए, मस्जिदों में किस तरह के इंतजामात होते हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतर इंतज़ाम है मस्जिदों में, हर चीज़ की सहूलत है। बहुत खुशी होती है, बहुत एकता से काम होता है इधर। पूरे मुसलमान लोग इबादत करते हैं रमज़ान के महीने में, अपना काम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, नमाज की पूरी पाबंदी होती है। माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं और रमज़ान के हर एक अमल को सही तरीक़े से करते हैं। रमज़ान असल में क्या है बोले तो किसी गरीब की भूख और प्यास को एहसास करना है, जो कि अगर एहसास होता है तो वही रमज़ान सही तरीके से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का वक्त हमारा 4:30 को ख़त्म होता है, 4:30 से हमारे रोज़ा स्टार्ट होता है। हाँ, 6:50 पर इफ्तार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी वगैरह, हाँ 14.5 घंटे का रोज़ा होता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी इतनी होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रहते हैं, और हमारे एरिया का माहौल बहुत अच्छा है। ओल्ड सिटी के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। बीदर में इन दिनों शिद्दत की गर्मी है, लेकिन ईमान की हरारत इस मौसमी गर्मी को दबा देती है, पस्त कर देती है। यहाँ पर ब्रेड की भट्टी में मजदूर काम कर रहे हैं, रोज़े की हालत में हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुश्किल काम ये अंजाम दे रहे हैं। बताइए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत में भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है, जो रोज़े की हालत में इतना ताकत दिया है हमें। और वो जो काम चल रहा है माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। रमज़ान में और ज़्यादा चल रहा है हमारा काम, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भट्टी के सामने रहते हैं, गर्मी जाहिर सी बात, बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी। अंदर भी गर्मी है, मगर ऊपर वाले का करम है, जो रोज़े में भी ऊपर वाला ताकत दिया है, अल्लाह का फजल व करम है। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीदर के गावान चौक में। बात चाहे गुलबर्गा की हो या फिर बीदर की, यहाँ हैदराबादी तहजीब और सकाफत का असर पहले से ही रहा है। सहरी और इफ्तार के मौके पर तो
हैदराबादी पकवान, हैदराबादी जायके यहाँ दस्तरखान की जीनत बने हुए रहते हैं। तो चलिए नाजरीन, बीदर और गुलबर्गा में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या रिवायतें हैं और क्या खुसूसियात हैं। बीदर की तारीख़ी नई कमान के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तारीख़ी इमारत का एक मंज़र, ये बाबू दाखिला रहा है शहर बीदर का, ख़ास तौर पर बीदर के पुराने इलाके का। और यहाँ पर इफ्तार से कब्ल इफ्तार के चटपटे पकवान बड़े पैमाने पर फ़रोख्त होते हैं। माह रमज़ान की बहारें गुलबर्गा और बीदर शहरों पर छाई हुई हैं। ये दोनों शहर हैदराबाद से करीब हैं और मुल्क की आज़ादी से कब्ल हैदराबाद की सल्तनत आसिफिया का हिस्सा रहे हैं। आज़ादी के बाद गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगीर और चंद दीगर शहरों को आज भी हैदराबाद कर्नाटक का इलाका कहा जाता है। इस लिहाज से यहाँ हैदराबादी तहजीब और सकाफत का गहरा असर देखने को मिलता है। रमज़ान की आमद के साथ गुलबर्गा और बीदर में जगह जगह हलीम के होटल और दुकानें नजर आती हैं। सुबह से ही कारीगर रमज़ान के इन खुसूसी पकवान को तैयार करने में मसरूफ़ रहते हैं। हलीम हो या हरीस, माह रमज़ान के खुसूसी पकवान जगह जगह फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरीस तैयार की जा रही है। बताइए कैसे हरीस बनती है? इसमें रवा, गोश्त, घी, काजू, पिस्ता, शाहजीरा, इलायची, दालचीनी, दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल, मांस की दाल, गुलाब की पत्ती, यानी कि गरम मसाले और दाल के साथ ये चीज़ बनती है। कितनी देर लगती है इसे, कितना वक्त लगता है इसे बनने के लिए? इसको सुबह 6 बजे से चालू करते, 5 बजे तक चलता, 11 घंटे में बनती है। अभी फ़िलहाल बीदर में सबसे अच्छा हरीस चल रहा है यहाँ सिल्वर बोगुर्ची में। मैं भी ग्राहक हूँ, भाई की होटल है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना रहे हैं। और स्पेशली हरीस रमज़ान का 1 महीना बनाते हैं, हर टाइम भी चलते रहता, खाली टाइम मगर हरीस नहीं रहती। बिरयानी मिलती है, अंडा फ्री दे रही और थोड़ा स्वीट फ्री देते हैं, पैरों का सूप देते, ठंडा पानी में अच्छा इंतजाम रखते, रोज़गारों के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखते। हरीस के अलावा दालचा खाना है, तहारी है शहर में, तहारी का इंतज़ाम है शहर में, बिरयानी है, चिकन 65 है, तलावा है, रोटी है, ये सब चीज़ है। इफ्तार से कब्ल बीदर और गुलबर्गा में जगह जगह दही बड़े फरोख्त होते हैं। शाम के 4 बजते ही तकरीबन हर मस्जिद के बाहर दही बड़े के ठेले लगे रहते हैं। दही बड़ों के अलावा यहाँ के लोग तरह तरह के नमकीन चुड़वों को भी इफ्तार के दस्तरखान पर ज़रूरी समझते हैं। चुड़वों के साथ मिर्च भज्जी, आलू भज्जी और दीगर चटपटे जायके भी फरोख्त होते हैं। वहीं तरह तरह के मौसमी फल भी फरोख्त होते हैं। शिद्दत की गर्मी से राहत पहुंचाने वाले फलों को गुलबर्गा और बीदर के रोज़ादार कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलबर्गा के मोमिनपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दही बड़े फरोख्त हो रहे हैं इफ्तार से कब्ल। बताइए इस इलाके में आप कब से कारोबार कर रहे हैं? मैं 40 साल से कर रहा हूँ, पूरे कंटिन्यू साल के 12 महीने करता हूँ। तो क्या दही बड़े कैसे बनाते हैं आप? दही बड़े के अंदर चने का आटा होता है, दही होता है, कोतमीर, पुदीना, करिया पत्ता, अदरक, लहसुन, जीरा, ये चीज़ें इसके अंदर रहते हैं। तो रोज़ाना कितना कारोबार होता है? होता है 4 से 5 हज़ार रुपये का। 1 महीना है रमज़ान का, रमज़ान का 1 महीना होता है। तो दही बड़े लोग क्यों खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान के अंदर मेरे को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए। आलू का समोसा, चिकन समोसा, कीमे का समोसा और पकौड़ी। होनियाले गुलबर्गा पे रहने वाला हूँ और ख़ासकर यहाँ पर पकौड़ी बहुत अच्छी मिलती है। और होनियाले पे से हम पकौड़ी यहीं से लेते हैं और शिरमाल शहर के लिए लेके जाते हैं और खजूर भी लेके जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है रोज़ादारों के लिए तैयार की जाती है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। कब से बिजनेस कर रहे हैं? ये 4-5 साल से कर रहे हैं। ये सिर्फ रमज़ान में होता है? हाँ, ये रमज़ान में खाली। क्या चीज़ें हैं ये सब? ये आलू बोंडा, सैंडविच, खैमे का पफ्स और पालक पकौड़ी, प्याज पकौड़ी, नमक पारे। रमज़ान का स्पेशल आइटम है ये नमक पारा, बूंदी है, खारा है, दाल मूड है, शौर पकौड़ी। स्पेशल आइटम है, 40 रुपये पाव किलो दे रहे।
कब लेते हैं ये लोग? इफ्तार के लिए लेते हैं। बीदर के गावान चौक में इस वक्त मौजूद हैं, बताइए क्या फरोख्त कर रहे हैं आप? ये मोटा शो बोलते हैं, इसे खारी बूंदी बोलते हैं, इसे चूड़ा बोलते हैं, इसे भी चूड़ा बोलते हैं, पकौड़ी, नमक पारे, दाल मोट। बीदर के दस्तरखान पर क्या चीज़ें होती हैं इफ्तार के मौके पर? इधर के दस्तरखान पे फ्रूट्स होते हैं, फिर खारा होता है और दही वड़े होते हैं। ये अपनी आइकॉन है, ये अपना खारा पकौड़ी और ये अपना और ये जो भी है दाल, ये बिदर का आइकॉन है। फ्रूट्स खरीदते हैं और कुछ खारा भजिए वगैरह और ठंडी चीज़ें ज़्यादा, हरीस है और दही बड़े वगैरह है, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। हैदराबाद करीब है इसलिए बीदर पे ज़्यादा असर है हैदराबाद का। हरीस भी चलती है हैदराबाद की तरह, दही बड़े चलते हैं और मेवे भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह का फजल है, सब अच्छा चल रहा है। नमाजों की पाबंदी करे और धूप से हिम्मत ना हारे और सारे रोज़े रखे, सारे इबादतें करें। ये दशहरी आम है, अच्छी क्वालिटी वाला दशहरी आम है, मगर मार्केट में कोई रेट नहीं है। क्या रेट है? फिलहाल 80 रुपये बिक रहा है, 80 रुपये किलो बिक रहा है। फ्रूट इस बार है, पाइनएप्पल है और तरबूज है, खरबूज है और केला है, अभी एप्पल है, आम है, मैंगो, बहुत सी चीज़ चल रहे हैं। गुलबर्गा में तकरीबन 350 मसाजिद हैं, जबकि बिदर में 200 से ज़्यादा मसाजिद आबाद हैं। यहाँ की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में माह रमज़ान के दौरान खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। इफ्तार के इंतज़ाम के साथ ठंडे पानी की मशीनें, कई मसाजिद में एसी और कूलर लगवाए गए हैं। मस्जिद कमेटियाँ इन तमाम इंतज़ामात को नहायत खुलूस और खुश असलूबी के साथ अंजाम देती हैं। माह रमज़ान के दौरान बीदर की तमाम मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। बताइए इस मस्जिद का क्या नाम है और यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात होते हैं? मस्जिद का नाम है मस्जिद तालीम मनियार। बहुत क़दीम, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे से मस्जिद कारगर है और हज़ारों मुसल्लियान इसमें इबादत करते हैं और करते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इसकी तौसीअ भी हुई है, बहुत से नमाजियों को और सहूलत मिलेंगी। रमज़ान के इंतज़ामात में मस्जिद में कुरान शरीफ ज़्यादा तादाद में रखे गए हैं और साथ ही रोज़दारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है कमेटी की जानिब से और आतराफ मकानात से इफ्तारियाँ आती हैं जिससे रोज़दार इफ्तार करते हैं। खुसूसन ठंडे पानी का इंतज़ाम है रोज़दारों के लिए, तहारत खाने हैं, वज़ू खाने हैं और हमारे पास बोरवेल और वेल है जो पानी के लिए वो मुनासिब सहूलतें बख्श रहे हैं। शहर गुलबर्गा की महबस मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसल्लियान आते हैं क्योंकि ये मस्जिद मार्केट के इलाके में मौजूद है, शहर के क़ल्ब में वाक़ है। महबस मस्जिद के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान क्या इंतज़ामात यहाँ पर किए जाते हैं? मस्जिद महबस में बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। कई लोग रोज़ा खोलने के लिए शाम में तो बहुत लोग आते हैं, दोपहर में भी आराम के लिए लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। इस मस्जिद को महबस क्यों कहा जाता है? ये मस्जिद महबस इसलिए कहा जाता है, पुराने ज़माने में पहले उस्मानिया दौर के अंदर ये जेल की मस्जिद थी, अब सेंट्रल बाज़ार के अंदर मस्जिद हो गई है। तमाम यहाँ पर आजू बाजू पूरे मुस्लिम कारोबार करने वाले हैं। यहाँ पर एक ये समझते हैं कि यहाँ पर आके रोज़ा खोलते हैं और अपने को इत्मीनान बख्श समझते हैं और ख़ास करके सारे इंतज़ाम यहाँ पर किए, एसी लगाया गया है, कूलर लगाए गए, हाउस का वज़ू का पानी का इंतज़ाम अच्छा किया गया है। ख़ास तौर पे महबस मस्जिद को इसलिए महबस कहा जाता है, ये खैदियों ने इसे बनाया था मस्जिद उस ज़माने में। उसको महबस के माने खैदियों का है, ये वो मस्जिद है। उसके बाद ये सुपर मार्केट बाद में आया है। उसके बाद अब इस वक्त खल्फ में है गुलबर्गे का सुपर मार्केट, यहाँ पर ये मस्जिद है। इस मस्जिद के तहत 200 दुकानें हैं जो किराए से चलते हैं, 200 ख़ानदान पलते हैं इस दुकानों से। बहुत बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हर लोगों को कारोबार चलता है। मेरा सर्वे है यहाँ, हर दुकान वाला कुछ भी नहीं किया व्यापार, वो तो 5000 के नीचे घर को नहीं जाता। अल्लाह का एहसान है। हम लोग एसी बनाए मस्जिद को, कूलरों का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का फ़िल्टर बैठा है। माह रमज़ान के चलते बिदर और गुलबर्गा के पुराने इलाकों के शब व रोज़ काबिल दीद बन चुके हैं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में
मोमिन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की ढेर सारी नियामतों से रोज़ादार लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए रोज़ादार दही बड़ों के साथ ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगरिब की नमाज के बाद कई होटलें और चाय की दुकानें वक्त सहर तक खुली रहती हैं। बीदर में इन दिनों शिद्दत की गर्मी है, रोज़ादारों के लिए तरह तरह के मशरूबात यहाँ तैयार हो रहे हैं। बताइए कौन से मशरूबात तैयार कर रहे हैं आप? मस्तानी जूस है मेरा, और पाइनएप्पल जूस, खरबूज, मैंगो, ग्रेप, मिक्स, ऑल जूस रहता है। कारोबार पार्सल का काफ़ी अच्छा रहता है मेरा। बस कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? 20 साल से करता हूँ भैया। 20 साल से आप जूस बना रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब रोज़ादारों को आप ये जूस देते हैं? बहुत खुशी होती है बेशक। और मस्जिद में भी हर प्रोग्राम रहता है मेरा यहाँ पे सामने, हर जुमा फिक्स है जी। रोज़ादारों के लिए मस्तानी, रोज़ादारों के लिए मस्तानी जूस आप मस्जिदों में भी रवाना करते हैं? जी जी हाँ। और ये आपकी तरफ से होता है? बिल्कुल मेरी तरफ से, रोज़ादारों के पूरे रोज़ादारों के लिए मेरी तरफ से होता है। बीदर की मस्जिद इलाही के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। इफ्तार के बाद कई रोज़ादार दही वड़े का मज़ा ले रहे हैं। बताइए कैसा टेस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, और रमज़ान में रोज़ों के बाद ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और जब जिस तरह हम रोज़े रहते हैं, दिन भर के पेट की जो गर्मी है, माशाल्लाह खाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना दही वड़े खाते हैं यहाँ पे? इंशाल्लाह ज़रूर खाते हैं। ओके ओके ओके, बताइए दही वड़ा खास है बीदर का? हम भी रोज़ खाते हैं क्योंकि मैदे में ठंडा रखता है, रोज़दार की मुफीद चीज़ है, बहुत बढ़िया होता है, सब खाना चाहिए। चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा कारोबार चल रहा है। रमज़ान में धूप तेज़ है, रोज़दारों का से ठंडा आइटम रहता है पेट में खाने के वास्ते। रोज़ाना कितना कारोबार होता है? 1000-1200 का होता है। बीदर की मशहूर खान चाचा होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये होटल देर रात तक खुली रहती है और रोज़ादार यहाँ के लजीज पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। बताइए क्या ख़ास होता है खान चाचा होटल में? रमज़ान में स्पेशल हमारे पास हरीस होता है, मटन एंड चिकन का, और स्पेशल मंदी वगैरह होता है, अरेबियन डिश। सहरी का इंतज़ाम भी हमारे पास होता है। सहरी में क्या होता है? सहरी में खीमा है, अचार है, रोटी वगैरह मिल जाएगा। बीदर में रात भर रोज़ादार रमज़ान के खुसूसी डिशेस से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। बताइए बड़ी खुशी होती है जब माह रमज़ान आता है? जी हाँ बिल्कुल, सभी को खुशी होती है। जायकेदार पकवान मिलते हैं खाने पीने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस रमज़ान के मौके पे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट एसपी साहब हुए बीदर के, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कि एसपी साहब हुए, और बहुत सारे मतलब ऑफिसर्स हैं, इन सब से भी हमें कोऑपरेशन अच्छा मिलता है। इफ्तार के दस्तरखान हों या इफ्तार की पार्टियां, इन मौक़ों पर गरीबों, बेसहारों, मुसाफिरों और मजबूरों को भी शामिल करना कई गुना सवाब और अज्र का बाइस बनता है। रमज़ान का हकीकी पैगाम भी यही है कि साहिब माल और दौलत गरीबों, यतीमों और पड़ोसियों को भी सैर व इफ्तार की खुशियों में शामिल करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहंशाह दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के सामने। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ान सब्र और शुक्र का दर्स देता है, यानी कि जब हम तकलीफ़ में हों तो सब्र करें, और जब हम खुशी में हों तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। तो इस लिहाज से माह रमज़ान दीन और आखिरत में कामयाबी के साथ दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है। तो चलिए नाज़रीन, मज़ीद माह रमज़ान की अहमियत, फ़जीलत और बरकत पर गुफ्तगू करते हैं। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया: रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी। माह रमज़ान का पहला अशरा यानी अशरे रहमत गुज़र चुका है, और दूसरा अशरा यानी अशरे मग़फ़िरत जारी है। जहन्नुम की आग से निजात का अशरा यानी तीसरा अशरा जल्द ही दस्तक देने वाला है। गुनाहगार बंदे अपने रब के सामने सजदा रेज़ होकर हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। बंदों की इस अदा को अल्लाह ताला खूब पसंद फरमाते हैं। तू मेरे सजदों की लाज रख ले, शऊर सजदा नहीं है मुझको, ये सर तेरे आस्तान से पहले
किसी के आगे झुका नहीं है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि लोग माह रमज़ान के मकसद को समझें। एक महीने की तरबियत हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। आक़ा नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है, रोज़े की हकीकत से वाकिफ़ हो जाए, तो मेरी उम्मत ख्वाहिश ये करेगी कि सारा साल भर रमज़ान होता तो क्या अच्छा होता। तो सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो है ना इंसानियत का तकाज़ा मुकम्मल तौर पर इंसान में आना चाहिए। सूफिया इकराम के इरशादात भी यही हैं कि जैसा कि हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी जगह जगह तहरीर फरमाए हैं, तुम अपने लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जवामिल कलीम में यही बात को लिखते हुए वाक़े को उजागर करते हैं कि जब किसी अल्लाह के वली के दिल में अल्लाह ताला का नूर रच और बस जाता है, तो वो इंसान तो इंसान है, जानवर की तकलीफ़ को भी अपने लिए तकलीफ़ महसूस करता है। हम तिलावत कुरान करते हैं, जैसा कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी कामयाबियों का दारोमदार दो चीज़ें हैं, एक तो तिलावत कुरान, दूसरा समा। कुरान हकीम को आज उस अंदाज से हम नहीं पढ़ सकते जिस अंदाज से कि हज़रत बंदा नवाज़ ने पढ़ा। इसीलिए आज मुसलमान हैं, रूहानियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीना जो हमें अता फ़रमाया है ये इसलिए है ताकि इसको हम सही तौर पर इस्तेमाल करके हमारे अंदर इंसानियत क्या है वो पैदा हो। जैसे इस महीने को कहा गया कि ये मुआसात का महीना है, गमखारी का महीना है, दूसरों के ख्याल करने का महीना है, तो इससे न है कि सिर्फ मुसलमानों को अपने फ़र्ज़ की अदायगी का मौका मिलता है, बल्कि इससे इंसानियत का तारुफ़ कराने का मौका भी मिलता है कि प्यास किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं, और जो है परेशानी और मजबूरी किसे कहते हैं। जब बंदा भूखा होता है, प्यासा होता है, या उसको और दूसरी ज़रूरत होती है, तो दूसरे इंसान जो मजबूर हैं उनका एहसास पैदा होता है कि उसके ज़रिए से इंसानियत को कैसे ज़िंदा किया जाए। तो एक अशरे रहमत तो गुज़र चुका, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। हमें चाहिए कि इस अशरे को हम अपने माफ़ी और मग़फ़िरत के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बंदा जानता है कि उसने कितने गुनाह किए हैं, कौन कौन से गुनाह किए हैं, कब किए हैं, वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने मुबारक महीना इसलिए दिया है कि हम इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी का एक कंटिन्यूएशन कर लें, एक रिन्यूअलेशन कर लें। ये रमज़ान का महीना मुसलमानों की मग़फ़िरत का ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, और रोज़ा रखवा कर अल्लाह तबारक व तआला शैतान की कमर तोड़कर और उसके हथियार का ज़रिया बनाकर अल्लाह तबारक व तआला सारे ईमान वालों की हिफाजत का ज़रिया बनाया है, जिसको रोज़ा ढाल कहा जाता है, हिफाजत का ज़रिया कहा जाता है। अहले ईमान अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाते नहीं, पीते नहीं, और इसी तरह से नफसानी ख्वाहिशात की तकमील नहीं करते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला जिन औकात में खाने पीने का हुक्म दिया है उसमें खाते हैं, पीते हैं, और इबादतों में खड़े होकर नमाज तरावी पढ़ते हैं, और इसी तरह से कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में सरकश शयातीन को कैद कर कर और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर कर और जन्नत के दरवाज़ों को खोल कर हर दिन आवाज़ लगाते हुए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की बशारत और इबादत करने वालों के लिए खुशखबरी सुनाने के लिए ऐलान करवाते हैं। बीदर की मस्जिद आयशा में ख़वातीन के लिए नमाज का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर रोज़ाना ख़वातीन तरावी की नमाज़ अदा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए अलहदा दरवाज़ा है और पर्दे का इंतज़ाम है। ये तमाम इंतज़ामात बहुत ही कम मस्जिदों में होते हैं ख़वातीन के लिए। मस्जिद आयशा में जो है बिलखुसूस पर्दे के साथ ख़वातीन के लिए नमाज का इंतज़ाम किया गया है, और जुमे की नमाज यहाँ पर ख़वातीन बाजमात अदा कर सकती हैं। बताइए क्या इंतज़ामात हैं यहाँ? हमारे लिए ख़वातीन के लिए रमज़ान ही में नहीं बल्कि आम दिनों में भी जो है नमाज के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, पूरा पर्दे के पाबंदी के साथ। और यहाँ पे हम हर साल जो है जमात अहले हदीस मस्जिद आयशा है। यहाँ पे दो मसाजिद है बिदर में, एक मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मस्जिद आयशा। रोज़ाना यहाँ पर कितनी ख़वातीन नमाज तरावी के लिए आती हैं? यहाँ पे नमाज तरावी के लिए कम से कम 500 के लगभग जो है ख़वातीन यहाँ पे आते हैं। 400 से 500 ख़वातीन जो है मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला में आते हैं। ईद के दिन भी जो है हम ख़वातीन के लिए इंतज़ाम करते हैं ईदगाह में,
اور یہاں پہ 5 وقت کی نماز کے لیے بھی انتظامات ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے خواتین جمعہ میں اور تراویح میں جو ہے آ جاتے ہیں، اور کچھ پروگرام ہو رہا ہے تو۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا انعام قرآن مجید ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات کو پیش کرتی ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے والوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ گلبرگہ میں 68 سال کی عمر میں طیب علی یعقوبی قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ بس آرام کی سوچتے ہیں، لیکن سید یعقوبی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات۔ اس ماہ مقدس کے دوران گھروں کا ماحول بھی کافی روحانی، نورانی اور ایمانی دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگہ کے ایک وظیفے یاب افسر کے گھر میں، جن کا نام ہے طیب علی یعقوبی، جو معروف نعت خواں ہیں، غزل گلوکار ہیں، اور ساتھ میں بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ 68 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں۔ بتائیے سر، بہت بہت مبارک آپ کو کہ آپ اس عمر میں قرآن شریف جو ہے حفظ کر رہے ہیں، کیسے خیال آیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ پہلے تو میں یاسین شریف حفظ کیا کرتا تھا۔ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ رحمان، ان سب کو یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن ادھر پلٹایا۔ یہ حقیقت میں اب تک کتنے پارے آپ نے حفظ کیے ہیں؟ میرے 5.5 پارے ہوئے ہیں۔ 30واں پارہ پہلے کیا، اس کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب والمحسنات کا 10واں رکوع چل رہا ہے۔ کیسے پاسبل ہے 68 سال کی عمر میں یا حافظہ، جیسا کہ ہم جو ہیں نوجوان لوگ بھی جو ہیں کچھ چیزیں یاد کرنا ہیں تو وہ نوجوانی کے عالم میں ہی بھولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس عمر میں حفظ کی قوت آپ کو کیسے مل رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم BSc BA MA میں جو اسٹڈی کیے ہیں اس کے 5 لائن 1-2 پیرا نہیں دہرا سکتے ہم پڑھ کے پاس ہوئے نا، نہیں دہرا سکتے۔ اور آج اللہ کا کلام، اس کا کمال دیکھیے، اس کا اللہ کا کلام میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم یعنی پورا پارا ایک حافظ سناتا ہے ایک شبینہ میں، ایک رات میں، تراویح میں، اور کیا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہونا کہ یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے زندہ۔ کب سے آپ حفظ کر رہے ہیں قرآن شریف؟ یہ میں 2016 سپٹمبر سے۔ تو اب امید ہے کہ یہ جو ہے جلد سے جلد مکمل بھی ہوگا؟ جی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے، دعا فرمائیں ہمارے لیے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طیب علی یعقوبی صاحب ایک بہترین نعت خواں بھی ہیں۔ اس وقت میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کے چند ایک اشعار پیش کریں، تو فرمائیے سر۔ محمد مصطفیٰ بولوں کہ محبوب خدا بولوں، ذرا تو ہی بتا اے دل میرے آقا کو کیا بولوں، محمد مصطفیٰ بولوں کہ محبوب خدا بولوں، ذرا تو ہی بتا اے دل میرے آقا کو کیا بولوں۔ یہ کہتا ہے جہاں
خیر البشر خیر الورا بولوں یہ کہتا ہے جہاں خیر البشر خیر الورا بولوں خیر الورا بولوں مگر ایمان کہتا ہے مگر ایمان کہتا ہے کہ اس سے بھی سوا بولوں میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے میرے سرکار کی ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے ہر ہر ادا میں ایک تجلی ہے کسے بدر الدجا بولوں کسے شمس و ضحیٰ بولوں کسے بدر الدجا بولوں کسے شمس و ضحیٰ بولوں ذرا تو ہی بتا اے دل میرے آقا کو کیا بولوں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے حسین کس کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ بندہ مومن ایک محدود مدت کے لیے ان صفات کو اپنا کر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے حق میں دعا کرتی ہیں، کیونکہ روزہ دار کے روپ میں انہیں محبوب حقیقی کے حکم کی مجسم تعمیر نظر آتی ہے۔ پروگرام رمضان کی رونقیں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگہ کے مشہور خواجہ بازار میں۔ یہاں پر عید کی شاپنگ اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے، چونکہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے تو گلبرگہ اور بیدر کے لوگ بھی عید کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں اس مرتبہ گلبرگہ اور بیدر کے بازاروں کا کیا حال ہے۔